بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے جادوگر کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے سینکڑوں خاندان اجاڑ دیے، جو عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے شیطان کی پوجا کرواتا، ان کے ساتھ زنا کرتا اور کالا جادو کرتا۔ لیکن اس جادوگر کا آخر انجام کیا ہوا؟ میرے عزیز دوستو، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے جو کہ لاہور کے میو ہسپتال میں پیش آئی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی جانب۔ جادو جس کا اسلامی دنیا میں کوئی وجود نہیں، لیکن پھر بھی کچھ شیطان پرست لوگ ایسا کرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن خدا پھر ان کے انجام کو رہتی دنیا تک عبرت بنا دیتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، اچانک ایک لڑکی ایک بوڑھے آدمی کو لے کر ایک ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی۔ وہ لڑکی بہت پریشان حال تھی اور بوڑھا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ لڑکی نے مدد کے لیے ڈاکٹروں کو پکارنا شروع کیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر تقریباً سبھی ڈاکٹر وہاں جمع ہو گئے۔ بظاہر تو اس کی واضح قطع ایسی نہ تھی کہ اس کی بیوی ہو، کیونکہ اس کی عمر 25 سال کے قریب تھی، جبکہ وہ بوڑھا 55 یا 60 سال کے لگ بھگ تھا۔ لیکن ڈاکٹرز کو بھی یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ لڑکی اس بوڑھے کی بیوی تھی۔ ڈاکٹرز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے شدید ڈائریا ہوا ہے اور یہاں لانے سے پہلے وہ کسی اور ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ اب وہاں اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے میں اسے یہاں پر لے آئی۔ اتنا کہہ کر وہ بری طرح رونے لگی اور ڈاکٹروں سے لیے اس کی جان بچانے کے لیے منت سماجت کرنے لگی۔ خیر، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور مریض کا معائنہ شروع کیا۔ وہ بوڑھا شخص مسلسل بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا تھا کہ بس اب اس میں چند سانسیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا۔ اس میں پانی کی شدید کمی تھی، سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا۔ لہذا ڈاکٹرز نے باہمی مشورے کے تحت اسے ICU وارڈ میں داخل کر لیا اور اسے خوراک اور دیگر ادویات کی فراہمی کے لیے ڈرپس کے علاوہ ناک اور منہ کے ذریعے نالیاں لگا دیں۔ اس طرح اس کا علاج شروع کر دیا گیا۔ وہاں کے سینئر ڈاکٹرز بھی اپنے راؤنڈ کے مطابق اس کا چیک اپ کر کے گئے۔ اسی طرح ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن وہاں پر موجود ایک نرس نے ایک عجیب بات دیکھی، لیکن وہ بات اس قدر ناقابل یقین تھی کہ اس نے کسی سے نہیں کہا، لیکن بذات خود ہی وہ اس کی تحقیق میں لگ گئی۔ وہ بات یہ تھی، دراصل ICU وارڈ میں انہی مریضوں کو لایا جاتا جن کی حالت سخت خراب ہوتی اور وہاں ان کی خاص طرح سے نگہداشت کی جاتی۔ اس امر میں وہ اللہ کے کلام کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور وہاں پر مختلف اوقات میں سورتوں کی تلاوت لگائی جاتی ہے۔ اب اس ICU میں بھی ٹھیک اسی طرح سورۃ الرحمن کی تلاوت وہاں پر موجود نرسز اپنے موبائل میں لگا دیتے اور ایسا کرنا ان کے نزدیک ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہوتا۔ اب وہ حیران بات یہ تھی کہ جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جاتی، اتنی دیر میں اس بوڑھے آدمی کے ناک اور منہ کے ذریعے لگی نالیوں میں سے کیڑے اور سونڈیاں نکلنا شروع ہو جاتی۔ وہ نرس اس منظر کو دیکھ کر شدید تعجب کا شکار تھی۔ اس نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا صرف اتنی دیر ہوتا ہے جب تک تلاوت چلتی رہتی ہے۔ اب انہوں نے اس منظر کی ویڈیو بنا کر وہاں کے سینئر ڈاکٹرز کو بھی واٹس ایپ پر بھیج دی، جسے دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کی حقیقت جاننا چاہی۔ اس بات کا ذکر سنتے ہی ICU میں شور سا مچ گیا۔ سب اس چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتے تھے، لہٰذا سورۃ الرحمن کی تلاوت لگائی گئی اور ویسا ہی ہوا جیسا انہیں پتا چلا تھا۔ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کیڑے مکوڑے اور سونڈیاں اس کے منہ سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ تھا، لیکن ڈاکٹرز نے اس کی بھی سائنسی وجہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ تھی، اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگی، میں جب اپنے شوہر کو یہاں لائی تو اسے ایسا کچھ نہ تھا، اب آپ لوگوں نے اس کے اندر کیڑے ڈال دیے ہیں۔ وہ بات بات پر خوب چیختی چلاتی، لہذا بڑے ڈاکٹرز نے مریض کے شوگر،
और एड्स के टेस्ट करवाने को कहा और उसकी बीवी से पूछा कि वह पिछले अस्पताल की रिपोर्ट्स दिखा दे जो उन्होंने टेस्ट करवाए थे। लेकिन वो तो जैसे इस बात पर राजी ही ना थी कि मरीज का कोई भी टेस्ट करवाया जाए। अब डॉक्टरों ने इस अजीब मामले के हल के लिए खुद ही टेस्ट करवाने का फैसला किया। रात का वक्त था। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स अपने कैबिन में मौजूद मरीजों की रिपोर्ट्स का मुशाहिदा कर रहे थे कि अचानक उनके कैबिन में उस बूढ़े आदमी की बीवी ने दाखिल होने की इजाजत तलब की। उसे अंदर बुलाया गया। अब उसकी मौजूदगी की वजह ने न सिर्फ डॉक्टर साहब को हैरान करके रख दिया बल्कि आप भी हैरान होंगे। वो औरत डॉक्टर के कैबिन में आई और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ हकीकत बयान करनी है। फिर उसने कहा, दरअसल बात यह है, मेरा शौहर एक जादूगर है। डॉक्टर साहब ने हैरान होकर कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि वो रिक्शा ड्राइवर है, तो अब क्या हुआ? इस पर औरत ने बताया, वो रिक्शा ड्राइवर ही है लेकिन वो काला जादू करता है। और हैरानगी की बात यह है कि वो कुरान पाक से अमल करता है। उसने बताया कि मैं खुद भी किसी और की बीवी थी और उसके पास सफली अमल करवाने के लिए आई थी। उस औरत ने बताया कि उसके ससुराल वाले उससे लड़ाई झगड़ा करते, उसका खावन उसे मारा करता था। उसने बताया, इन सब मुसीबतों से जान छुड़वाने के लिए मैंने ससुराल वालों पर गलबा हासिल करने के लिए उसका हल तलाश करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन किसी ने इस शैतान जादूगर के बारे में बताया कि बज़ाहिर तो यह रिक्शा चलाता है लेकिन इसका किया हुआ अमल कभी ज़ाया नहीं होता और उसके जादू का कोई तोड़ ही नहीं। बेशुमार लोगों के दरमियान वो पोशीदा शोहरत रखता था और उसी शोहरत की कहानियां सुनकर मैं इसके पास चली आई। औरत ने बताया कि जादूगर मुझे अपने घर ले गया। वहां उसने मुझसे कहा कि वो कुरान पाक से अमल करेगा, लिहाजा मैं वुजू कर लूं। और इस तरह अमल का बाकायदा आगाज हो गया। वो जादूगर मुझे हाल नुमा कमरे में ले गया जहां पर तकिया रखा था और उस पर एक अजीब शक्ल बनी थी। वो खुद तकिए के पीछे खड़ा हो गया और मुझसे कहा कि मैं तकिया को सजदा करूं। चुनांचे अंधे लालच में मैं वैसा ही करती गई जैसा वो कहता गया, हत्ता कि उसने मेरा जिस्मानी फायदा उठाया, मेरे साथ जिना किया और मुझसे कहा कि ये अमल का हिस्सा है। इसके अलावा जो सबसे गलीज हरकत उसने की वो ये थी कि उसने अपनी गंदगी खाने को मुझे कहा। मैंने उसकी गंदगी खाई। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि यह गंदगी खाने में मिलाकर अपने ससुराल वालों को खिला देना। औरत ने कहा, जैसा उसने बताया था मैंने सब वैसा ही किया। हर आदमी उससे वैसे ही कामयाबी हासिल करता जैसा वो उससे करवाना चाहता था। लेकिन औरत ने बताया कि अमल करने के बाद मेरे ससुराल वालों के रवैये में कोई फर्क न आया, अलबत्ता मेरा दिल इस आदमी की तरफ माइल होने लगा और मैंने अक्सर इससे मिलना और उसके साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा भी आया कि मैं अपनी जन्नत छोड़कर इसके पास हमेशा के लिए आ गई। न ही अपने शौहर से तलाक ली और न ही इसके साथ निकाह हुआ। लेकिन इस जादूगर ने कहा कि सब कुछ हो गया है, अब तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ रहोगी। अब चूंकि मैं उसके साथ रहती थी लिहाजा मैंने उसको जादू करता देखा। यह आदमी कुरान पाक की मुख्तलिफ आयतों को बेतरतीब जोड़कर उसे अमल किया करता और काला जादू करता। फिर वो कुछ अरसे के बाद अचानक बीमार हो गया। उसको एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वहां वो तकरीबन 4 माह दाखिल रहा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर एक दिन वो मुझसे कहने लगा, मैं तौबा करना चाहता हूँ। उसने मुझसे भी कहा कि तुम भी अपने शौहर के पास वापस चली जाओ। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। मैं अपने शौहर के पास वापस आ गई लेकिन उसने मुझे यह कहकर निकाल दिया कि अब क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें तभी तलाक दे दी थी जब तुम पहली बार उस आदमी के पास गई थी। अब मैं दोबारा इस जादूगर के पास वापस आ गई। उस वक्त वह मयू अस्पताल में दाखिल था लेकिन मैं जब उसके पास वापस आई तो वह बहुत बेहतर था और अपने पांव पर खड़ा था। लिहाजा उसने मुझे साथ लिया
और हमने एक मस्जिद में जाकर निकाह कर दिया और इस तरह फिर से हम एक साथ रहने लगे। अब वो रिक्शा चलाकर गुजारा करता था, लेकिन फिर एक दिन एक लड़की उसके पास आई जो बहुत खूबसूरत थी। उसने हमें खूब पैसों का लालच दिया था, इसलिए उसने दोबारा अमल करना शुरू कर दिया और अब इसकी हालत यह है जो आपके सामने है। उस औरत ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं तौबा करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ये सब सुनकर हैरान थे। जब भी सूरत रहमान की तलावत होती, इसी तरह उस आदमी से कीड़े मकोड़े बाहर निकलते और सूंडियां बाहर निकलती। वो बूढ़ा शख्स अगले रोज मर गया और इस बार अल्लाह पाक ने उसे तौबा की तौफीक भी ना दी। ये तो था उस बूढ़े जादूगर का इबरतनाक वाक़या, लेकिन ये आजकल की ही बात है और ये एक बात हमारे सामने आ गई। लेकिन हर दिन हमारे मुआशरे में ऐसे गुनाहगार हो रहे हैं। अपने घरेलू मामलात के रूहानी हल के लिए कई लोग ऐसे गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं। ये लोग कुरान पाक का गलत इस्तेमाल करते हैं, शैतान की मदद लेते हैं। बिलाशुबा ऐसा करने और करवाने वाला मुसलमान नहीं हो सकते, जैसा कि खुद कुरान पाक फरमाता है कि कुरान नेकोकारों के लिए रहमत और बुरों के लिए अजाब है। यानी जो लोग इसके कलाम में रद्दबदल करेंगे उनके लिए बड़ा खसारा है। लोग ये कहकर कि जादू तो बरहक है क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था, अपनी बात में वजन डालते हैं, लेकिन जादू हरगिज बरहक नहीं। इसका वजूद तो है लेकिन यह बरहक नहीं। इसको करने और करवाने वाला दोनों ईमान से खारिज हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़तीन की मदद से जादू का खात्मा किया था। कुरान पाक में हर मर्ज का इलाज है, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तू बीमार होता है तो मैं ही तुझे शफा देता हूं। मेरे मोहतरम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये नासूर हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है। खासकर ख़वातीन इन जादूगरों का सबसे बड़ा शिकार होती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इस गुनाह से बचिए और जितना मुमकिन हो सके दूसरों को बचाइए, क्योंकि जादू करने और करवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं और दोनों दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।